ये छोटी छोटी चीजों के वजह से 10-15 मार्क कम मिलते हैं एग्जाम में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वेरी ओन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो 45 days to go for CA exams, guys. Are 45 days sufficient to clear CA exams? What is the difference between a student who scores 205 marks and the student who scores 195 marks? क्या ये एक्चुअली कोई डिफरेंस है या कोई माइन्यूट सा एडजस्टमेंट करना चाहिए अपने को? ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो, सो स्टे ग्लूड थ्रू आउट द एंड. Before that, guys, if you haven't subscribed to the channel, please consider subscribing. Loads of motivation, study plans, study strategies and stress buster videos coming up on the channel. So guys, it is your love which keeps me motivated. So do consider subscribing. Now let us move on to our super interesting video, that is, are 45 days sufficient to crack CA exams? So for that, guys, you have to follow 3 important tips. So the very first tip out of it is start prioritizing. एक simple example के साथ में ये explain करती हूँ. For example, आज आप SFM उठा के बैठ रहे हो. What I see students doing is, suppose you have allotted 7 days for SFM. उसमें से पहले 5 दिन you devote to the chapters which cover only 20 marks. भले ही आपको number wise लग रहा होगा कि यार 5 दिन में मैंने 12 chapters खत्म कर लिए, बट कभी सोचा है कि ये 12 चैप्टर्स खत्म करने से आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे? एंड व्हाट वी टेंड टू डू इज फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी एनालिसिस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब अपने को करना है लास्ट के 2 दिन में. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, गाइज? नो, इट इज नॉट. एंड फिर एग्जाम में जाके क्या होता है, आपको ये सब आ जाएगा, 20 मार्क का बहुत अच्छे से लिख पाओगे, लेकिन 80 मार्क्स के लिए ब्लैंक, क्योंकि उसको तो लास्ट के लिए छोड़ दिया था. इसीलिए गाइज, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग. आई नो दीज आर सीए एग्जाम्स, कुछ एक फिक्स तो नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, बट एक स्टैंडर्ड वेटेज तो रहता ही है ना अपने पास. गाइज, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग. अभी टाइम नहीं बचा है और टाइम वेस्ट करने का. इसीलिए अगर 7 दिन दे रहे हो तो भले ही पहले 5 दिन 4 चैप्टर्स करो. काउंट पे मत जाओ यार, सिर्फ 4 चैप्टर हुए, लेकिन ये 4 चैप्टर से अगर आपको 60-70 मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम में, तो व्हाई नॉट गिव फर्स्ट एंटायर 5 days टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. Now is the time. Let us start doing that for all the subjects. So guys, many times I talk about the same stuff on my counseling sessions. So after talking to about 3,500 students, I have come down to this conclusion कि बच्चों को majority of the times ये ही doubt होता है कि किस subject को, किस chapter को कैसे schedule किया जाए and इसको properly कैसे draft किया जाए. And क्या होता है ना guys, we are left with 45 days now. तो अभी तक जो किया वो किया, but these 45 days can totally act as a game changer. लेकिन ये game changer act करेगा if you have a proper plan with you. So if you need any help with prioritizing, scheduling, study plans, you can register for the counseling session. I am leaving a link in the description box below. So that is about the first thing which is very important, which is prioritizing. That applies to all the subjects for that matter. So before moving on towards our second point, I have got some good news for CA Foundation students. Unacademy is launching its T20 test series for CA Foundation students. This is not a normal test series, guys. It includes 20 questions, 20 marks in 20 minutes. So 20 minutes में 20 MCQs solve करने basically, which is going to start from 14th of September. The timings of which are from morning 10 to evening 6. तो आप आपके convenience के हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं. तो for students who want to give yourself a check, CA Foundation people, I am giving a link in the description box below and details are put up on my Telegram account. The next tip is avoid the confusion. क्या कर रहे हैं अपन अभी guys? इस मोमेंट पे आके क्लासेस ले रहे हैं. See guys, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. There are students जिनकी क्लासेस के बिना पढ़ाई नहीं होती है. उनको फास्ट ट्रैक बैचेस या फिर उनको रिविजन लेक्चर्स देखना जरूरी है, अदरवाइज वो पढ़ाई करते टाइम कांस्टेंट नहीं रह पाते, उनका मोमेंटम नहीं आ पाता. तो ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स लाइक दिस गो फॉर द क्लासेस, बट आई एम प्रीटी श्योर ऐसे स्टूडेंट्स हैं 40%, 50%, बट रेस्ट 50% आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड कि यार ये भी क्लास ले लेता हूँ, ये भी क्लास कर लेता हूँ. नहीं गाइज,
अगर इफ यू एनालाइज योर पर्सनैलिटी, इफ यू आर अमंगस्ट दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिसको सेल्फ स्टडी करने के बाद ही समझ में आती है चीजें, सेल्फ स्टडी किए बिना आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो दीज स्टूडेंट्स स्टॉप टेकिंग क्लासेस एज ऑफ नो. इट्स अ बिग नो. सो दिस इज अबाउट द क्लासेस. नेक्स्ट थिंग, कंफ्यूजन करते हैं अपन, बहुत सारे नोट्स. 45 डेज बचे गाइस. इसमें अगर आप हर टाइप के नोट्स, हर टाइप का चार्ट, हर चीज को उठा के बैठोगे तो आपका 45 डेज में 2 सब्जेक्ट भी नहीं होंगे, राइट? तो इस वजह से ही तो अपन एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाते. इस वजह से ही वो 10 मार्क्स कम मिलते हैं अपने को एग्जाम में. एंड फिर अपन बोलते हैं कि यार मैम पढ़ाई तो इतनी की थी तो भी 190 पे आके अटक गया, क्योंकि आप कंफ्यूज ही थे ना. कंफ्यूज माइंडसेट से ही पढ़ाई कर रहे थे. इसीलिए फिल्टर फिल्टर फिल्टर, लेस इज मोर नाउ. जितने कम बुक्स, जितने कंसाइज प्रिसाइज नोट्स और जितने कम से कम क्लासेस, जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जहां पे रिवीजन की जरूरत है, ऑफ कोर्स गो एंड टेक द क्लासेस. लेकिन जहां पे जरूरत है ओनली वहां पे. इट्स मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर है. प्लीज कंसिडर दिस. एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द टेस्ट सीरीज. अभी मैंने क्या देखा है बच्चों को कि ठीक है, जो 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप रैंडमली कभी भी कोई भी टेस्ट दो. लेकिन जिस बच्चे ने अभी पढ़ाई चालू की है, एक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एंड सपोज फॉर एग्जांपल अभी आप लॉ कर रहे हो, इसके बीच में आ जाता है एसएफएम का टेस्ट, तो लॉ की पढ़ाई जो छूट गई वो तो छूट गई. एसएफएम की पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाए और फिर पेपर दे दिया ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए जाके, और फिर उसमें कम मार्क्स आ जाता है. एंड देन स्ट्रेस कि यार एसएफएम तो मैंने किया था, इसमें कम मार्क्स क्यों मिले? ऑफ कोर्स कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने उसके पहले तो उसकी पढ़ाई नहीं की. तो गाइज अभी जो भी प्लान बनाओगे नेक्स्ट 45 डेज का, आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से आपकी टेस्ट शेड्यूल करो. अदरवाइज ये टेस्ट जो इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दैट कैन बी अ थ्रेट इन डिस्गाइज फॉर यू. एंड देन अपने को कम मार्क्स मिल जाते एग्जाम में. क्यों? क्योंकि अपन कुछ और ही चीजें कर रहे थे. इसीलिए प्लान 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 प्लान. इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. इसीलिए अभी हर चीज प्लान करनी जरूरी है गाइस. ये छोटी छोटी चीजों के वजह से 10-15 मार्क कम मिलते हैं एग्जाम में गाइस. सो नाउ इज द टाइम. Let us move ahead with a clear head, with a complete clarity, and with a concise, precise approach. You have to promise me now. Let us spread some positivity around. You have to comment in the comment section below that for the next 45 days, you're going to talk CA, walk CA, eat CA, and not stop. Seriously guys, let us accept this challenge कि for the next 45 days, every move is going to be calculated. Okay guys, now let us move ahead with entire sense of clarity. All the best.